today we will discuss features of business economics. In the previous video, we have discussed about the meaning of business economics. In today's, we are going to discuss features of business economics, right? As we know that economics is divided into two parts, micro and macro, right? Without micro, macro is incomplete, and without macro, micro is incomplete. So we have to study both the aspects, micro and macro. Now in micro, we study about demand, cost, production, pricing theories, right? In business economics, we are going to decide or we take business decisions by using these aspects, theories only, right? Thus we say that business economics is micro in character. As we study here, demand, production, cost, pricing, profit, right? These all are part of the microeconomics, okay? Thus we also say that microeconomics is called price theory. So business economics is very much attached with micro. So we say it is micro in character. Next is use of macro in some business decisions. As I already said you that without micro, macro is complete. Without macro, micro is incomplete. That means some aspects are being used of macro character like national income, trade cycles, foreign direct investments. All these aspects listed in macroeconomics. For example, if you are a manufacturer of certain goods and you have to export the goods to other country, say US, so you have to understand the market over there, you understand their consumer behavior over there, you understand the political environment over there, legal environment over there. So these are the macro level parts, right? Next, in business economics, we use theories of the firm, like profit maximization theory. What this theory says, profit, we all know that to survive the firm, to sustain in the market, we have to raise profit. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम फर्म को सस्टेन नहीं कर सकते. So ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो कुछ फर्म्स का ऑब्जेक्टिव होगा हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम हो. तो ये बिना प्रॉफिट के सर्वाइवल नहीं हो सकता. दूसरा एस्पेक्ट है हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन. सेल्स मैक्सिमाइजेशन मतलब ये है कि कुछ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल्स को मैक्सिमाइज करना. मतलब अगर सेल मैक्सिमाइज होगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा. तो प्रॉफिट क्या हुआ? एज अ रिवॉर्ड हो गया. प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, प्रॉफिट हमारा रिजल्ट हो गया सेल्स के बढ़ने की वजह से. अब यहाँ पे देखिए दो एस्पेक्ट हैं. पहला, अगर सेल्स बढ़ती है तो ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ेगा, तो जब रेवेन्यू बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा. दूसरा एस्पेक्ट, अगर सेल्स बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज, प्रोडक्शन लेवल हमारा क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा. जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट हमारी कम होगी, और जैसे हमारी कॉस्टिंग कम होगी प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज कर जाएगा. तो जब सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड आ रहा है, प्रॉफिट एज अ रिजल्ट आ रहा है. हमारा मोटिव क्या है? सेल्स को मैक्सिमाइज करना. नेक्स्ट थ्योरी हमारी है ग्रोथ थ्योरी. द ग्रोथ थ्योरी सेज GR equals to GD equals to GC. यहाँ मतलब है this GR is called your balanced growth rate. Your balanced growth rate is equal to your growth of demand equals to the capital supply growth. तो जब ये दोनों चीजें बराबर होंगे तो क्या होगा? हमारा बैलेंस्ड ग्रोथ रेट मिलेगा. नेक्स्ट इज योर बिजनेस इकोनॉमिक्स pragmatic. Now what does pragmatic means? Pragmatic अगर आप लिटरल में देखेंगे तो लिटरल मीनिंग है आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रियलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं, थ्योरेटिकल या आइडियोलॉजिकल कांसेप्ट को यूज नहीं कर रहे हैं. दैट मींस यू आर डीलिंग विद द सिचुएशन इन अ प्रैक्टिकल वे. सो मैक्रोइकोनॉमिक्स जो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स है दैट इज प्रैग्मेटिक बिकॉज इट डील्स विद रियलिस्टिक अप्रोच, राइट? नेक्स्ट इज योर नॉर्मेटिव. नाउ वी से बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब यहाँ पे समझिएगा दो इकोनॉमिक्स है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है हमारी स्टडी अबाउट द फैक्ट्स व्हाट इट इज, यानी एक्चुअली में पोजीशन या सिचुएशन क्या है. फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री, तो ये एक फैक्ट है, ये एक रियल सिचुएशन है. तो ये क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया कि इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री.
अब अगर हम कहते हैं नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव मीन्स व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी मीन्स क्या होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हम डेवलप कर दें, हमारी इंडियन इकोनॉमी अपने आप डेवलप कर जाए, ये होना चाहिए, हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो दे होना चाहिए, दिस व्हाट ऑट टू बी। अब ये डिसीजन मेकर के ऊपर है कि हम इस डिसीजन को एक्सेप्ट करते या नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप न्यूज़ में सुनोगे एमएसएमईज का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या हो रहा है, ये हमारा एक इकोनॉमिक सेक्टर का बहुत बड़ा सेगमेंट है। अगर हम इस सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कंसेप्ट की हम बात करते हैं वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगा, इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हाट ऑट टू बी। तो एमएसएमईज को सपोर्ट करना चाहिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए, ये क्या है व्हाट ऑट टू बी। दीज आर योर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको यही बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन है और उसमें क्या करना चाहिए। अब आप करते हैं या नहीं करते ये डिसीजन मेकर के ऊपर है। सो वी से इट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स टूल्स कौन कौन से यूज करता है। मैथमेटिक्स टूल्स यूज करता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे सेंट्रल टेंडेंसी हो गई, मीन मीडियन मोड की बात कर ली, तो सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात कर ली, ऑपरेशन रिसर्च जैसे गेम थ्योरी हो गया, आपका सीक्वेंसिंग हो गया, सिंप्लेक्स मॉडल्स हो गए। तो ये सारे टूल्स क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने में यूज करता है जिससे कि आप सही डिसीजन पे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू नॉन इकोनॉमिक कंसीडरेशंस। अब यहाँ दो चीज समझिएगा, एक्टिविटीज अगर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज तो दो उसमें बांटते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पे भी पैसे का रोल आ रहा है दैट इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये समझिएगा। जहां पे भी मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा दैट इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जहां पे मनी का रोल नहीं है दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर में कुक आता है, ठीक है, कुक आता है, कुक को हम पे करते हैं पर मंथ, वो जो आ रहा है कुक जो खाना बना रहा है आपके घर में उसको आप सैलरी दे रहे हैं दैट इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू आर पेइंग दैट। लेकिन जो मदर हमारे यहाँ कुक कर रही है राइट, वहां पे हमको विद लव एंड अफेक्शन, तो वहां पे उनको कोई सैलरी तो नहीं मिल रही ना, कोई पर्स तो नहीं मिल रहा है, तो दैट इज योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है वो हो गया इकोनॉमिक, जहां पे मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो गया नॉन इकोनॉमिक। अब यहाँ पे जब मॉनेटरी बात हो रही तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक्स रिलेटेड विद द मनी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कंसीडर करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो नॉन इकोनॉमिक कंसीडरेशंस को भी कंसीडर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बिहेवियर, जैसे हम बात करें कंज्यूमर बिहेवियर की, कंज्यूमर कब खरीदेगा, किस प्राइस में खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, उससे खरीदना बंद क्यों किया, जो हम डिमांड एनालिसिस में करते हैं। तो ये क्या हो गया ह्यूमन बिहेवियर, वो उसका टेस्ट चेंज होता है, उसके प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। तो जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं हम इसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते। तो दैट इज योर बिहेवियरल अप्रोच। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल। एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, आपका ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, राइट, नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया। तो एनवायरनमेंट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, दैट योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजिकल कंसीडरेशंस। तो ये क्या हो गए, ये हमारे सब नॉन इकोनॉमिक considerations, right? So in this we take three aspects: behavioral, with related to human, environmental and